students, in previous video we had already discussed about the calculation of legal due date. Now move to the next topic in bill of exchange, discounting the bill of exchange. What is the meaning of discounting? Discounting is nothing, it is a device to convert the bill into its present value. Sometime what happened, drawer or holder wants payment before due date. यदि ड्यू डेट के पहले ड्रॉवर्स को पैसे चाहिए तो वे क्या करता है, वे बैंक के साथ अपने बिल को डिस्काउंट कराता है. इफ़ वे बैंक से डिस्काउंट कराता है तो ऑन बिहाफ बैंक भी तो कुछ चार्ज करेगा. तो बैंक डिडक्ट सर्टन अमाउंट ऑफ बिल फॉर देयर सर्विसेज. सो एक तरह से मैं ये बोल सकते हैं ये ड्रॉवर के लिए एक एक्सपेंस होता है. फॉर दिस वी हैव टू पास different journal entry in the books of drawer also and drawee also. Let us see what are different journal entries. In the books of drawer there are different transactions. Yes, the first transaction, drawer discount the bill with the bank. When drawer discount the bill with the bank, so what is the journal entry? Bank account debit because drawer receive कर रहा है पैसा. Discount account because वे एक एक्सपेंस है तो डिडक्ट करेगा बैंक. तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. इन द केस ऑफ ड्रॉवी वहाँ उन दोनों के बीच कहीं भी उनका ट्रांजैक्शन नहीं है तो यहाँ पे नो एंट्री. सेकेंड, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. यदि बिल डिस्काउंटेड ड्यू डेट पे हो रहा है तो ऑलरेडी ड्रॉवर ने रिसीव कर चुका है. तो हियर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देयर इज नो एनी जनरल एंट्री, बट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी पैसा जा रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. आपका थर्ड कंडीशन आ सकता है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. सपोज ऑन द ड्यू डेट डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होता है तो मेरा क्या होगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सिमिलरली इन द केस ऑफ ड्रॉवी दोनों का ट्रांजैक्शन है, दोनों इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक. इन केस ऑफ ड्रॉवीज अकाउंट टू बैंक अकाउंट. सिमिलरली ये भी इन्वॉल्व है, ड्रॉवी भी इन्वॉल्व है तो बिल्स पेबल अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. मूव टू द ड्रॉवर्स जर्नल एंट्री. ड्रॉवर्स जर्नल एंट्री में अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, ये दोनों अमाउंट इंक्लूड आपको शो करना पड़ेगा. लेट अस टेक वन क्वेश्चन. Neha sold goods to Rohan rupees 42,000 on 6th September. On 6th September, underline this. Neha draws a bill of exchange at 3 months. What is the time period? 3 months for the amount which was accepted by Rohan. Now, your first condition, Neha discounted the bill with her banker at rupees 41,000. On the due date of the bill, Rohan dishonored the bill and bank paid rupees 300 as the noting charges, which is the main points I underline here. Now we have to show journal entries in the books of Neha and Rohan. Neha sold goods, it means Neha is a drawer and Rohan is a drawee. Now, what is the date? 2000, year is 2019, 6th September. Neha sold goods to Rohan. So, your entry is Rohan's account debit to sales account. Amount is rupees 42,000. Narration क्या होगा? Being goods sold on credit. Similarly, on the same time, please pass the journal entry in the books of drawer and drawee together. Same time, what happened? इसने परचेज किया हुआ होगा तो आपका सेम डे 2019 6 सितंबर को इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी इट मीन्स रोहन
एंट्री होगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहाज अकाउंट. Amount should be same, 42,000, 42,000. Being good purchased on credit. Now second line, Neha dues a bill of exchange at 3 months. सेम डेट आपका रहेगा 6 सितंबर. नेहा ने ड्यू किया है बिल ऑफ, नेहा ड्यू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months फॉर द अमाउंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रोहन. तो आपका एंट्री क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट. ड्रॉवी इट मीन्स रोहन अकाउंट, टू रोहन्स अकाउंट. 42,000, 42,000. Same date 6 September. What is the year? Neha's account. Neha's account debit to bills payable account. Amount is 42,000 and 42,000. Being bill are acceptance given. Bills are accepted by Rohan. Now third entry, you can see here, read line wise which was accepted by Rohan. Now Neha discounted the bill with her banker at rupees 41,000. बिफोर ड्यू डेट नेहा ने डिस्काउंट कराया बिल को, तो डेट आपका सेम रहेगा. डिस्काउंट कराया 41,000, इट मीन्स 1,000 क्या हुआ, ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस है. एनी एक्सपेंसेस डेबिट होता है. तो व्हाट इंटरेस्ट वॉज, उसने रिसीव किया बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 41,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 to bills receivable, to bills receivable account 42,000. Means being Rohan acceptance discounted with bank. Now on the same time here there is no any transaction. Now move to the next line. Here there is no any transaction. Now move to the next line. On the due date of the bill, Rohan dishonored the bill and bank paid rupees 3,000 as noting charge. What is the date here? Here is the legal due date. You see here in 3 months. 3 months means September plus 3 months plus 3 days grace of period. तो आपका डेट क्या हो जाएगा, 2019, ईयर इज सेम, December 9. What is the entry? Rohan's account debit to बैंक अकाउंट. आपका अमाउंट कौन सा रहेगा, अमाउंट ऑफ बिल इन, मैंने जनरल एंट्री में लिखा है अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्ज. इट मीन्स 42,300, 42,300. Now on December 9, what is the journal entry in the books of Rohan? नोटिंग चार्ज इज एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवी. इट मीन्स रोहन के लिए नोटिंग चार्ज एक्सपेंस है. तो एंट्री होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू नेहाज अकाउंट, टू नेहाज अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल्स पेएबल, दैट इज योर बिल का क्या अमाउंट था 42,000, नोटिंग चार्ज मेरा कितना हुआ 300 एंड नेहा टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 42,300. व्हाट इज द नरेशन है, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल. अंडरस्टूड टिल? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.